Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you Computer Science class 9th and in this I am teaching you part B and chapter number 2 and name of the chapter is a word processing tool. What is the name of the chapter is a word processing tool. In this today we are discuss working with table. Today we are discuss working with table. First we need to know what is table. Table क्या होता है? What is table? Table is a grid-like structure containing vertical column and horizontal row. A table is a grid-like structure containing vertical column and horizontal row with a cell at every intersection. It is really useful as it is used to organize and compile data in tabular form. It is used to prepare document like mark sheet, timetable, and employees data and etc. Okay, inserting a table in a document. Then we need to know how to insert a table in a document. How to insert table in a document. There are three different methods for inserting a table in MS Word. There are three different methods for inserting a table in MS Word. A table can be inserted in a document by using any of the following method. Method 1. Inserting a table using table grid. Inserting a table using table grid. Perform following mentioned step to insert a table using the table grid. Okay, using the table grid. First we need to know what is table grid. Table grid क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ टेबल ग्रिड क्या होता है जब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, ठीक ना। उसके पहले हम स्टेप जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज मूव एंड ब्रिंग द कर्सर एट द लोकेशन वेयर अ टेबल नीड टू बी इंसर्टेड। क्या मैंने बोला? मूव एंड ब्रिंग द कर्सर एट द लोकेशन वेयर अ टेबल नीड टू बी इंसर्टेड। ओके, and click on the insert tab. Second step, click on the insert tab and click on the add table option. Third step, click on the add table option available in the table group. Table group. A drop down menu will appear. A grid containing ready-made table. In this, a grid containing ready-made table which is made of squares will appear. Okay, which is made of square will appear. A grid containing the ready-made table which is made of square will appear. I hope all of you understand it. And fourth step, when you move the mouse over the square, the preview of the table is shown in the document. The preview of the table is shown in the document. Click on the table grid to add the table of the desired size. The table will get inserted in the document. टेबल क्या होगा? हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एक इमेज में देख लेते हैं। फर्स्ट वी गो इनसाइड रिबन एंड इन दिस वी क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। when we click on insert tab then tables group will be appear. When we click on table option in the table group, that drop down menu will appear. Okay, that drop down menu will appear and that is called grid. ये क्या कहलाता है? हमारा grid कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? grid कहलाता है। सब लोग ध्यान से देखिए। और ये ग्रिड जो है ना, एक ग्रिड एक सेल को क्या करता है? शो करता है। एक सेल को शो करता है, ठीक ना। एंड मल्टीपल ऑफ ग्रिड मेक रो एंड कॉलम। और ये मल्टीपल ऑफ ग्रिड जो होता है यही क्या बनाते हैं? रो और कॉलम बनाते हैं, जिनसे हमारा क्या होता है? टेबल फॉर्म होता है, ठीक। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास टेबल जो है उतने जितने ग्रिड हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कितने ग्रिड सेलेक्ट किए? 1 2 3 4। ये 4 क्या है हमारे? ये 4 क्या है हमारे? रो हैं। ये क्या है हमारे? ये 4 क्या हमने सेलेक्ट किया? 1 2 3 4। ये क्या है हमारे? एक रो में कितने हमने कॉलम सेलेक्ट किया? ये क्या है?
ये क्या है, ये रो है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, रो होता है, और वर्टिकल में क्या होता है, कॉलम होता है। तो हमने एक रो में कितने कितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, 4 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए 1 2 3 4, पहले रो में कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। दूसरे रो में भी हमने 4 कॉलम, तीसरे रो में भी हमने 4 कॉलम। इसी तरह देखिए दूसरे रो में भी 4 कॉलम है, तीसरे रो में भी 4 कॉलम है, चौथे रो में भी 4 कॉलम है, और फिफ्थ रो में भी 4 कॉलम है। तो हमने 5 रो, और हर रो में हमने कितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, 4 कॉलम हमने सेलेक्ट किए हैं। तो ये हमारा अपेयर हो गया। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड का, और इसमें हम यहाँ पे अपने टेबल को क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। कहाँ पे क्लिक करना होगा, इंसर्ट टैब पे। आफ्टर दैट टेबल ग्रुप विल बी अपेयर, टेबल ग्रुप क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा। और इसमें टेबल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक ना। किस पे क्लिक करेंगे, टेबल ऑप्शन, जो ऐड टेबल ऑप्शन है उस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेनू हमारे पास अपेयर हो जाएगा। देखिए ये ड्रॉप डाउन मेनू आ गया, और इसमें से देखिए ये ग्रिड कहलाता है। और इस ग्रिड में ये क्या है हमारा, ये कॉलम है। ये क्या है हमारा, ये कॉलम है। और ये हमारे पास क्या है, ये सारे क्या है, रो हैं। ये क्या कहलाते हैं, हमारे रो कहलाते हैं। तो अब जितने रो और कॉलम हमें चाहिए अपने टेबल में, उतने ग्रिड हम उस हिसाब से ग्रिड को सेलेक्ट करेंगे। और वो हमें हमें कहाँ पे दिखाई देगा, हमारे स्क्रीन पे दिखाई देगा। वो टेबल कहाँ पे शो होगा, हमारे स्क्रीन पे शो होगा। और इसी पे जब हम क्लिक कर देंगे तो ये टेबल हमारे स्क्रीन पे क्या हो गया, हमारा शो हो गया, ठीक ना। आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे टेबल कैसे डॉक्यूमेंट में ऐड किया जाता है, ठीक। तो ये था पहला मेथड, ये क्या था हमारे पास, पहला मेथड। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड पे। किस पे चलते हैं हम, अपने दूसरे मेथड पे। और दूसरे मेथड में हम जानते हैं कि हम टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, यूजिंग टेबल ऑप्शन से, यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन से, ठीक ना। मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे ऐड करते हैं, यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, इंसर्ट टेबल ऑप्शन की हेल्प से, ठीक ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मूव एंड ब्रिंग द कर्सर एट द लोकेशन वेयर अ टेबल नीड टू बी इंसर्टेड। हमें अपने कर्सर पे को वहाँ पे ले जाना होगा जहाँ पे हमें अपने टेबल को ऐड करना होगा। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। कहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। थर्ड ऑप्शन, क्लिक ऑन द ऐड टेबल ऑप्शन अवेलेबल इन टेबल ग्रुप। ओके, टेबल ग्रुप में जो ऐड टेबल ऑप्शन अवेलेबल होगा उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपेयर, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास अपेयर हो जाएगा। इन फोर्थ स्टेप, वी क्लिक ऑन दी इंसर्ट टेबल ऑप्शन। हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, हमारे पास इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दैट यू वांट टू इंसर्ट इन द टेबल, that you want to insert in the table, and click on the OK, and click on the OK, the table get inserted। तो हमारे पास टेबल क्या हो जाएगा, हमारा इंसर्टेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे, ऐड टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन मेनू हमारे पास अपेयर हो गया। यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। देखिए इस तरह से इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो हमसे पूछेगा। और जैसे ही हम इसको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हम डाल के ओके करेंगे, हमारा टेबल जो है हमारे डॉक्यूमेंट में एंटर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी करके देखते हैं, क्या करते हैं, इसको भी हम करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पे जाना होगा, टेबल ग्रुप में जाना होगा, ऐड टेबल पे क्लिक करना होगा, और ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमें कहाँ पे किससे किसे सेलेक्ट करना होगा, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपेयर हो गया। अब जितना हमें रो चाहिए और जितना कॉलम चाहिए, जैसे मुझे इसमें 4 कॉलम चाहिए, ठीक ना। और कितने रो चाहिए मुझे, 5 रो चाहिए। और मैं क्या करूँगा, डाल दिया। और उसके बाद जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा,
ये टेबल हमारे पास कहाँ हो जाए, क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, अब हम चलते हैं अपने तीसरे मेथड पे। हम किस पे चलते हैं, अपने तीसरे मेथड पे, इंसर्टिंग अ टेबल यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन। मैंने क्या बोला, इंसर्टिंग अ टेबल यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन। ठीक ना, ये भी एक ऑप्शन है जो हमारे पास ऐड टेबल के ड्रॉप डाउन, ऐड टेबल ऑप्शन पे क्लिक करने पर उसके ड्रॉप डाउन मेनू में आता है। तो चलिए हम इसको भी करके देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप, मूव एंड ब्रिंग द कर्सर एट द लोकेशन वेयर अ टेबल नीड टू बी इंसर्टेड। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। एंड थर्ड स्टेप, click on the add table option available in the tables group. Okay, a drop down menu will appear. click on the drop क्लिक ऑन दी ड्रॉ टेबल ऑप्शन। इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन दी ड्रॉ टेबल ऑप्शन। अ कर्सर विल बी टर्न इनटू पेंसिल। हमारा कर्सर किस में टर्न हो जाएगा, पेंसिल में टर्न हो जाएगा। होल्ड एंड ड्रैग द माउस एट द प्लेस वेयर यू वांट टू ड्रॉ द टेबल, वेयर यू वांट टू ड्रॉ द टेबल। सेवेंथ स्टेप, draw the required number of row and column. A table is drawn and you can add text in it accordingly। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। क्या करते हैं, हम इसको करके देखते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, तो हम देखते हैं तीसरे मेथड से हम कैसे, क्या टेबल को कैसे हम इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पे जाना होगा, टेबल ग्रुप में जाना होगा, ऐड टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमें किसको सेलेक्ट करना होगा, ड्रॉप टेबल को। जैसे ही हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, हमारा देखिए हमारा कर्सर किस में चेंज हो गया, हमारा पेंसिल में चेंज हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रैग करके क्या करेंगे, यहाँ पे हम ड्रैग करके, मैं यहाँ पे एक टेबल बना के आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा सही आप लोगों को समझ में आया। देखिए मैंने ड्रैग कर दिया। अब इसमें जितने रो और जितने कॉलम चाहिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करके बना लेंगे। ठीक ना, हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करके बना लेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। ठीक ना, मैंने कॉलम बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रो बना रहा हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, रो बना रहा हूँ। ठीक ना, अब देखिए मैं रो बना रहा हूँ। ठीक, एक और रो मैं बना दे रहा हूँ। देखिए मैं एक और रो बना दे रहा हूँ। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो और रो भी बना सकता हूँ। तो इस तरह से हम मैनुअली, इसे क्या कहते हैं, मैनुअली टेबल क्रिएट करना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम मैनुअल टेबल क्रिएट करना भी कहते हैं। ठीक, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक किसी को समझने में। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हम कहाँ चलते हैं, अपने अगले टॉपिक पे। तो देखो हमारा अगला टॉपिक है मूविंग अ टेबल। हमारा अगला टॉपिक क्या है, मूविंग अ टेबल। एम एस वर्ड अलाउ यू टू मूव अ टेबल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। MS Word allow you to move a table from one location to another location along with data, along with data, okay, along with its data. Perform following mention step to move a table within the same Word document, within the same Word document. Okay, first step, bring your mouse pointer over the table which you want to move from one location to another location. Bring your mouse pointer inside the table. A small cross arrow will appear. एक small cross arrow will appear at the top left corner of the table. At the top left corner of the table. Second step, click over द स्मॉल क्रॉस एरो। हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, स्मॉल क्रॉस एरो पे क्लिक करेंगे, विच विल सेलेक्ट द होल टेबल, जो क्या कर लेगा, होल टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। थर्ड स्टेप, वंस द टेबल इज सेलेक्टेड यूज
दी कट ऑप्शन और सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स। या तो हम कट ऑप्शन यूज करेंगे या तो कंट्रोल प्लस एक्स कर देंगे। तो कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है, शॉर्टकट होता है कट करने का। की टू कट दी टेबल फ्रॉम दी ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन से हमारा टेबल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एंड ब्रिंग योर कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू मूव द टेबल। ओके, फोर्थ स्टेप में ब्रिंग योर कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू मूव द टेबल एंड यूज पेस्ट ऑप्शन और सिंप्लीफाई प्रेस कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी क्या है, ये शॉर्टकट की है। क्या है ये, शॉर्टकट की है पेस्ट पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। कंट्रोल प्लस बी की टू पेस्ट द टेबल एट द डिजायर्ड लोकेशन, एट द डिजायर्ड लोकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल में हम कुछ डेटा एंटर कर देते हैं। ठीक ना, इस टेबल में हमने कुछ डेटा एंटर कर दिया। ठीक, यहाँ पे नेम एंटर कर दिया, मैं कुछ डेटा एंटर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूम चले, ठीक ना, कि हम इसमें इसमें डेटा के साथ हम इस टेबल को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक ना, 30 20 30 34 65, ठीक, इतना ही डेटा हम रहने देते हैं। ठीक ना, अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक हमारे पास एरो आ रहा है ना, क्रॉस एरो आ रहा है। इस पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, टेबल सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। अब इसको जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट में ले जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे इस टेबल को मैं ले जा रहा हूँ। देखिए मैं ऊपर से टेबल को लिया हूँ, अब यहाँ पे देखिए नीचे ले जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो अब देखिए ये टेबल पूरे डेटा सहित हमारा ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक ना, और मैंने क्या यूज किया, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट करने के लिए मैंने क्या यूज किया, कंट्रोल बी। दोनों की जो है आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यही प्रैक्टिस करें। ठीक ना, यही प्रैक्टिस करें। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।